Hey guys, we are continuously uploading videos for TYBSc Chemistry of Semester 4. We have covered all the videos of Industrial Chemistry, Inorganic Chemistry, and also we have started for Physical Chemistry. We have also covered 2 videos of Organic Chemistry, and we will uploading as soon as all the videos of all the chapters of all the subject of chemistry as well as optional subject also. This is our third video of organic chemistry on introduction to spectroscopy. I am Suhani from ssclasses.in. आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, vibrational excitations occurred by which radiations? Here are 4 options and the correct answer is option A. IR radiation is responsible for vibrational excitations. ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं. The nature of excitations in IR spectroscopy. तो आंसर होगा vibrational excitations. और vibrational excitations कैसे होता है? When molecule absorb IR radiations, then it gives rise to vibrational excitations. Second question. The molecule absorb the radiations, it goes to the higher energy state is. Here are 4 options. Option A is emission spectroscopy, option B is absorption spectroscopy, option C is film spectroscopy, and the last option is all of above. The correct answer is option B, absorption spectroscopy. तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी पे जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में. थर्ड क्वेश्चन, न्यूक्लियर एक्साइटेशंस ऑकर्ड बाय व्हिच रेडिएशन? Here are 4 options and the correct answer is option C, radio wave. So radio wave are responsible for nuclear excitations. ये क्वेश्चन और भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि नेचर ऑफ एक्साइटेशंस इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज. तो आंसर होगा न्यूक्लियर एक्साइटेशंस. क्वेश्चन 4, विच रेडिएशन हैव वेवलेंथ रेंज 800 नैनोमीटर टू 10⁵ नैनोमीटर? Here are 4 options and the correct answer is IR. So IR radiation have wavelength range 800 nanometer to 10⁵ nanometer. Fifth question, rotational excitations occurred by which radiations? Here are options and the correct answer is D option, microwave. Microwave radiation are responsible for rotational excitations. Sixth question, wave number is measured in. Here are options. Option A is Kaisers, B option centimeter inverse, C option is both A and B, and the last option is centimeter. So correct answer is C, both A and B. So wave number is measured in Kaisers as well as in centimeter inverse, because 1 Kaiser is equals to centimeter inverse. Question number 7, electronic excitations occur by which radiations? Here are 4 options and the correct answer is option B, UV and visible radiations are responsible for electronic excitations. So ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, नेचर ऑफ एक्साइटेशंस इन UV एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज. सो वहाँ पे आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस. क्वेश्चन नंबर 8, एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज हायर देन. Here are 4 options. यहाँ पे पूछा है कि इंफ्रारेड की एनर्जी किससे हायर है, एक्सरे से या यूवी रे से या विजिबल रे से या माइक्रोवेव से? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, माइक्रोवेव, बिकॉज माइक्रोवेव रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा है और जिस रेडिएशन का वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका एनर्जी लोवेस्ट होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माइक्रोवेव है. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन स्टडिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज. हियर आर 4 ऑप्शंस. हमें बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर क्या है जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं. ए ऑप्शन इज वेव फॉर्म, बी ऑप्शन इज पार्टिकल फॉर्म, सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ड्यूअल नेचर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेव फॉर्म. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन वेव फॉर्म में होता है. 10th क्वेश्चन, एक्सप्रेस द लैम्ब्डा मैक्स इक्वल्स टू 725 नैनोमीटर इन सेंटीमीटर इनवर्स. यहाँ पे वेवलेंथ दिया है
725 नैनोमीटर में दिया है और हमें सेंटीमीटर इन्वर्स में बताना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि सेंटीमीटर इन्वर्स में वेव नंबर की क्वांटिटी मेजर होती है, तो यहाँ पे हमें वेव नंबर फाइंड करना है। Here are 4 ऑप्शंस। तो देखते हैं कि नैनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और वेव नंबर का फॉर्मूला ये है कि इन्वर्स लेना है वेवलेंथ का, तो यहाँ पे सेंटीमीटर वेवलेंथ में है का इन्वर्स लिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1.37 × 10⁻⁴। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। 11th क्वेश्चन, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। Here are 4 options: IR, UV, radio wave or microwave. So NMR spectroscopy use radio wave. So correct answer is option C, radio wave. 12th questions, which radiations have longest wavelength and lowest energy among the following is. Here are 4 option। हमें बताना है कि इन चारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से किस रेडिएशन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और लोवेस्ट एनर्जी है। सो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमने सीरीज देखा है तो लेफ़्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीज होता है और एनर्जी डिक्रीज होती है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, रेडियो वेव, बिकॉज रेडियो वेव सबसे लास्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इसीलिए उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है। एक्सप्रेस 2 माइक्रो इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ दिया है वो माइक्रो में दिया है और सेंटीमीटर इनवर्स मतलब वेव नंबर फाइंड करना है। तो हियर आर 4 ऑप्शंस। माइक्रो को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। तो 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर एंड 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 माइक्रो दिया है तो 2 माइक्रो इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वेवलेंथ हमें पता है और वेव नंबर फाइंड करना है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, जो भी वेवलेंथ दिया है उसका इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स लेने के बाद करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 5000 सेंटीमीटर इन्वर्स। 14 क्वेश्चन, एक्सप्रेस द लैम्बडा मैक्स इक्वल्स टू 8750 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन नैनोमीटर। यहाँ पे जो वेवलेंथ दी है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में है और हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हियर आर 4 ऑप्शंस। तो देखते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1 × 10⁻⁻9 मीटर। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो 10⁻�9 मीटर को रिप्लेस कर सकते हैं 1 नैनोमीटर से, इसीलिए ये कन्वर्जन आता है। एंगस्ट्रॉम से अगर नैनोमीटर करते हैं तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे जो वेवलेंथ दी है वो 8750 दिया है और उसको 10⁻⁻1 से इंटू करते हैं। तो करेक्ट आंसर इन चारों में से आता है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 875। 15th question, as we move from LHS to RHS, wavelength goes on increasing and hence energy and frequency are. So यहाँ पे हमें बताना है कि जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज में तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी क्या, एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी का रिलेशन बताना है। तो ऑप्शंस ए इज बोथ इंक्रीज, ऑप्शन बी इज एनर्जी डिक्रीज, frequency increase, option C is energy increase or frequency decrease. The last option is both decrease, energy as well as frequency. So correct answer is option D, both decreases, because energy and frequency are directly proportional to each other and wavelength is inversely proportional to energy. So wavelength increase होगा तो energy decrease होगा, अगर energy decrease होगा तो frequency भी decrease होगा। 16th question, which radiation have highest frequency as well as highest energy among the following is. Here are 4 options और हमें बताना है कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और एनर्जी भी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉस्मिक रेज। स्टार्टिंग जो रेडिएशन है वो कॉस्मिक रेज है और जो लेफ्ट हैंड साइड
होता है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और एनर्जी हाई होती है और फ्रिक्वेंसी भी हाई होती है। 17 क्वेश्चन, the type of spectrum recorded in UV, IR and NMR is known as, here are 4 options: emission spectrum, B option is absorption spectrum, C option is IR spectrum and the D option is all of above. So correct answer is option B, absorption spectra हमें देखने को मिलता है UV, IR और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। 18 क्वेश्चन, which radiation have wavelength range 80 to 760 nanometer और 3800 to 7600 angstrom? So options, here are 4 options and the correct answer is D option, visible region have wavelength range from 380 to 760 nanometer. 19th question, molecule loses its absorbed energy and come back to ground state, form higher energy state is. So here are options and the correct answer is option A, emission spectroscopy. तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल अपनी एब्जॉर्ब एनर्जी लूज करते हैं और हायर एनर्जी से ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, range of the wavelength of cosmic rays. Here are the 4 options and the correct answer is option B, 10 raised to -5 to 10 raised to -3 nanometer. I hope you have all understood these 20 questions and thanks for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then keep watching साइंस के साथ।